Hello everyone. Right now I am going to discuss one important topic of your banking insurance subject. The topic is life insurance premium product. Okay, the topic is life insurance product. So here in this topic we discuss concept of life insurance. Next, features of life insurance. Next, advantages of life insurance. And next, importance of life insurance. Okay, this is the main topic of today's class. So in this class I am going to start meaning of life insurance. Basically लाइफ इंश्योरेंस क्या है? देखो, लाइफ के ऊपर जो इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस है. जैसे कि प्रोटेक्शन, ये वन काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है. प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? अगर अचानक से तुम फॉर एग्जांपल तुम एक अच्छा नौकरी कर रहे हो, अभी तुम्हारे पूरा जो फैमिली है फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यू, तो उस समय क्या होता है? उस समय अगर कोई किसी कारणवश तुम्हारा अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कोई कुछ हो जाता है, डेथ बोलो जो भी है वो बोलो, ये हो जाता है, उस समय पूरे फैमिली को जो प्रोटेक्शन देगा वो है लाइफ इंश्योरेंस. बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस तुम्हारा सेविंग्स के लिए भी हम लोग करते हैं और लाइफ को कवर करने के लिए, लाइफ का जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं. सो लाइफ इंश्योरेंस का अगर मीनिंग देखेंगे हम लोग उस मटेरियल से, तो उस जगह में देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस इज ए फिनेंशियल कवर फॉर ए कॉन्टिजेंसी और रिस्क लिंक्ड विथ ह्यूमन लाइफ सच एज लॉस ऑफ लाइफ बाय डेथ, डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट. तो इसके लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं. द रिस्क ऑफ लाइफ इंश्योरेंस और द रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स. देयर आर सेवरल नेचुरल फैक्टर्स आर देयर और causes related to various types of accidents. When human life is lost or a person is disabled permanently or temporarily, there is a loss of income to the entire household. Okay, it is not possible to value human life. Rather, it would be more appropriate to say that human life is beyond any value. However, it would also be inappropriate to say that loss of human life or a disability does not result into any financial loss. Such loss would be permanently due to loss of income that could have been earned by the affected person. Hence, the most appropriate method to determine such loss would be access the same of the basis of loss of income in the future years, is also known as human life value. So in summary, you can say life insurance policies provide compensation of such loss by providing for payment of a definite amount of money to be paid by the insurer in the event and insured dies or disabled permanently or temporarily during the term of policy. Okay, these are the main features. Next point is features of this is the main definition concept. Next point, features of life insurance. बेसिकली कॉन्सेप्ट को अगर समझोगे तो ये फीचर्स अपने आप खुद चला आएगा. कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने बोला कि एक्सीडेंट होगा तो लाइफ पूरे फैमिली को कवर करने के लिए और खुद का लाइफ को कवर करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं. इसका फीचर्स क्या हो सकता है? तो देयर आर वेरियस वेज ऑफ डिफाइनिंग इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस. सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आर एज फॉलोज. लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट to pay a certain sum of money on the date of a person in consideration of the due payment
of a certain annuity for his life calculated according to probable duration of life. So life insurance is a contract. Remember that thing. It's a contract. Okay. Point number 1 is contract. Number 2, life insurance contract is contract whereby a person is agreed for a consideration for a periodical payment is called premium. So there will be a premium. That premium in consideration what? In consideration of a periodical payment is called a premium to pay to the another insurer or his estated sum of money on happening of an event dependent on a human life. तो ये प्रीमियम देना पड़ेगा उस लाइफ इंश्योरेंस के लिए. तो ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स है. अगर पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन व्हिच वन पार्टी एग्रीज टू पे ए गिवन सम ऑफ मनी अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट contingent upon the duration of human life in consideration of immediate payment of a smaller sum or other equivalent periodical payment by the other. Okay, so the by the other ये हम लोग याद रखेंगे. तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वन पार्टी एग्रीज टू पे गिवन सम ऑफ मनी अपॉन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट कॉन्टिजेंट अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो ये पार्टी कौन है? एक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी LIC जो है वो किसको प्रीमियम पे करेगा, वो किसको उसका जो मेच्योरिटी वैल्यू है, उसका जो मेच्योरिटी पेमेंट है वो किसको करेगा? अगर किसी कारणवश किसी का देहांत हो जाता है, वो इंश्योरेंस कर रहा है, तो ये अगर इंश्योरेंस करेगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, तो उस समय वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन किसको पैसा देगा? उस व्यक्ति को पैसा देगा जिसने वो लाइफ इंश्योरेंस किया था. सो ऑब्वियसली LIC भी पेमेंट क्लियर करेगा उस आदमी को. On the basis of the factors that distinguish life insurance from the other types of life insurance is that life insurance is not a contract of indemnity, whereas the other form of insurance are essentially contract or indemnity. Okay, under the principles of indemnity, the insured should be compensated only for the loss that has been incurred by him. Acha, now what is the effect? The effect of life insurance not being a contract of indemnity, it's that on the happening of an event, insured against the insurer should pay a great amount of irrespective of whether issued suffers a loss or not. तो ये बेसिकली ये बात है इसमें. तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है. ठीक है, तो ये हम लोग सोचेंगे ये चीज़. नेक्स्ट जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं समरी करके बोल रहा हूँ. ये जो लाइफ इंश्योरेंस है, ये किसके ऊपर, इसका फीचर्स अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँगा तो ये पहला क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है. ओके, मैंने बोला जो ये कॉन्ट्रैक्ट है. इसके बाद मैंने क्या बोला कि प्रीमियम पे करना पड़ेगा. इसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है, द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट फॉर ए लमसम मनी. फॉर ए लमसम मनी का एक लमसम मनी का एक बात रहेगा उसमें. लमसम मनी यानी फॉर एग्जांपल तुमने प्रीमियम तुम दे रहे हो 15 ईयर्स के लिए. 15 ईयर्स के बाद तो पूरा पैसा एक साथ मिलेगा ना, वो लमसम मनी हम लोग बोलते हैं. द अमाउंट इज पेड एट द एक्सपायरेशन ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन. ये एक्सपायरेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमने 15 साल के लिए वो इंश्योरेंस किया, तो 15 साल तुम्हारे लिए एक्सपायरी डेट है, तो 15 साल के बाद तुम्हें वो पैसा मिलेगा. नहीं तो और एक कंडीशन रहता है, अगर किसी कारणवश कोई जो इंश्योरेंस किया उसका अगर किसी कारणवश उसका डेथ हो जाता है, उस समय भी हम लोग उसको पैसा देंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. एडवांटेजेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एडवांटेजेस अगर देखेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स ड्यूअल बेनिफिट टू द पर्सन्स टेकिंग सच इंश्योरेंस. दिस ड्यूअल बेनिफिट आर सेविंग्स एंड सिक्योरिटी. तो
तो ये हम लोग याद रखेंगे कि सेविंग्स तो हम लोग को चाहिए, इसके साथ हम लोग को सिक्योरिटी मिल रहा है किसके ऊपर, लाइफ के ऊपर. द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सप्लेन एज टू व्हाई दिस इन्वेस्टमेंट टूल शुड बी ए पार्ट ऑफ वन फाइनेंशियल प्लान. नाउ व्हाट इज द फॉलोइंग फैक्टर्स? द फर्स्ट वन इज रिस्क कवर. सो ये रिस्क कवर को याद रखना. बेसिकली लाइफ इज टुडे फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. कब क्या होगा हम लोग कुछ नहीं जानते ये चीज. तो इन दिस सिनेरियो लाइफ इंश्योरेंस एंश्योर दैट द लव्ड वंस ऑफ दैट इंश्योर्ड continue to enjoy good quality of life, and the same should not be affected by the any unforeseen circumstances. Okay, since in the event of death of the insured, the amount provided in the policy is paid by the insurer to the next of kin who people then will be able to maintain reasonable lifestyles. Okay, so ये हम लोग याद रखें कि रिस्क कवर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लानिंग लाइफ स्टेज नीड्स. नंबर 2 में बोलूंगा प्लानिंग लाइफ स्टेज नीड्स. ओके, इसका मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ अल्टीमेटली डेथ बट ऑल्सो एक्ट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. रिमेंबर दैट थिंग. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? फुल 15 साल के लिए तुम इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ ना. तो वन कैन मीट वन गोल्स, बी इट चिल्ड्रन एजुकेशन, देयर मैरिज, बिल्डिंग योर ड्रीम होम और प्लानिंग एज ए रिलैक्स्ड एंड पीसफुल रिटायर्ड लाइफ. This is because generally on the expiry of the term of insurance, the insured get the amount for which policy was taken plus bonus. ओके, ये याद रखेंगे हम लोग. नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देख सकते हैं वो है हैबिट ऑफ सेविंग. तो ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग के घर में पिगी बैंक रहता है तो हर दिन अगर तुम 1 रुपया करके जमा करो तो महीने के बाद तो तुम्हारा 30 रुपीज़ चला आएगा. तो ये 30 रुपीज़ जब एक साथ देखोगे तुम खुश हो जाओगे. ये नेचुरल थिंग है. लाइक दिस लाइफ इंश्योरेंस इज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वेयर इज ए पॉलिसी होल्डर वन हैज टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट at specific period. This build the habit of long term savings. Regular savings of a long period ensure that decent corpus is built to meet various needs at different stages of life. तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. सॉरी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. 4 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर गया. Safety of investment. Okay, the investment made in life insurance is quite safe as life insurance as a highly regulated sector. The body that regulates insurance sector in India is called as IRDA. तो ये basically कौन देता है? IRDA. तो IRDA, what is the full form of that word IRDA? Insurance Regulatory Development Authorities. That insurance regulatory development authorities always gives the umbrella protection to the policy holder. Okay, so the investment made in life insurance is quite safe as life insurance is highly regulated sector. The body that regulates insurance sector in India is called IRDA. Okay, next जो point है वो है liquidity. मैं 5 नंबर पॉइंट में लिखता हूँ इसमें liquidity. लिक्विडिटी का मतलब क्या है? देखो, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि तुम्हारा फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर ये बोलेगा कि तुम्हारे पास ये लिक्विड एसेट है, तो लिक्विड एसेट क्या है? तुम अगर तुम्हारे मनी में देखो कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, 2 रुपया है और 10 रुपया है, वो 100 रुपया है, वो 100 रुपीज़ जो है 100 ये जो है ये तुम्हारे लिए लिक्विड एसेट है. मगर तुम्हारे पास जो अगर एटीएम रहेगा तो एटीएम ये लिक्विड एसेट नहीं है. ठीक है, ये तुम्हारा लिक्विड एसेट हो नहीं सकता है. मगर तुम्हारे पास अगर कैश पैसा है वो है तुम्हारा लिक्विड एसेट. Like this, life insurance provides good liquidity to the policy holder. As such, policies provide an option to taking loans against their policy. तो ये पॉलिसी होल्डर अगर चाहेगा कि लोन लेंगे हम लोग अपने पॉलिसी के ऊपर, फॉर एग्जांपल लोन अगर लेंगे तो क्या किसके ऊपर लेते हैं हम लोग? किसी की मॉर्गेज दे के लेते हैं. मॉर्गेज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल तुमने अगर लोन लेने जा रहे हो तुम्हारे घर में घर के लिए, तो ये घर का जो एरिया है उसको तुम्हें बैंक के अंदर वो जमा करना पड़ेगा.
उसका जो पेपर वर्क है वो सब कुछ जमा करना पड़ेगा। अगर तुम किसी कारणवश वो लोन चुका नहीं सकते तो उस समय वो पैसे को यानी वो एरिया को वो बैंक अपने जब्त कर लेगा और अपने खुद के पास ले लेगा। तो फोर्थ इज, तुम अगर लाइफ इंश्योरेंस तुम्हारे पास है, वो लाइफ इंश्योरेंस तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी है और एक मॉर्गेज है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड goods liquidity to the policy holder. As such, policies provide an option for taking loans against their policy. Thus, when there is an urgent need of funds, the insured can avail the facility of loan against his policy, which will be, however, depends upon the surrender value of the policy. Okay. Next one is tax benefit. Sixth number is tax benefit. Now, the point is what tax benefit. Now, why that tax benefit will enter in that advantage of life insurance? First of all, the premium paid for the life insurance policies and the amount received in the event of death on maturity on the said policy attract tax benefit. Now, tax benefit का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुमने एक पॉलिसी तुमने एक चूज किया और तुम्हारे पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तुमने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तुमने किया। फॉर एग्जाम्पल तुम एक गवर्नमेंट का नौकरी भी कर रहे हो, जो भी है तुम नौकरी कर रहे हो या तुम्हारा जो भी है तुम्हारा बिजनेस जो भी है, उसमें तुमको टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। बिकॉज टैक्स तो हम लोग देते हैं, टैक्स दो तरीके का हम लोग देते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जिस कॉपी में तुम अभी लिख रहे हो उसके पीछे देखो एमआरपी लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी ये जो पैसा तुमने दिया दुकानदार को दिया, उस पैसे के अंदर टैक्स भी तुमने ऑलरेडी दे दिया मगर तुम जानते ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स के बारे में अगर बोलेंगे तो तुम्हारा इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर जो टैक्स देखो, यानी इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट टैक्स के समय तुम अगर गवर्नमेंट को दिखाओगे कि तुम्हारे पास ये पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट हमेशा जानता है वो चीज़ कि वो पॉलिसी टैक्स बेनिफिट देता है। कैसे? टैक्स को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें गवर्नमेंट को पैसा देना है 10,000 रुपीज़ होल ईयर में, एक टैक्स का पैसा देना है। उस समय तुम्हारा एक पॉलिसी है, पॉलिसी के अंदर ऑलरेडी तुमने टैक्स पे कर दिया 2,000 रुपीज़। उस समय तुम्हारा 10,000 से 2,000 माइनस हो जाएगा, टोटल गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 8,000, यानी ये एक टैक्स बेनिफिट है। तो इसके बारे में इस जगह में ये बोला है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वो है इंपॉर्टेंस। ये दो पॉइंट हो गया, अभी है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ये याद रखना, वो इंपॉर्टेंस को मैं शॉर्टकट बोल देता हूँ। फ्रॉम द अबव इट कैन इजीली बी इन्फर्ड दैट लाइफ इंश्योरेंस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए पर्सन फाइनेंशियल प्लानिंग। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इफेक्टिव टूल ऑफ सेविंग, it can ensure financial security to those who mean the most to insured, such as spouse, children, dependent parents, in the event death of insured. A carefully executes life insurance policy can help a person prepare a life uncertainties and give peace of mind, knowing that the future those who rely on you is secured. तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मामला, ये हम लोग को ऐसे हम लोग समझेंगे कि इसमें सिक्योरिटी तो रहेगा ही रहेगा, उस समय सेविंग्स भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंस है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का। फिर टैक्स बेनिफिट का तो हम लोगों ने देखा ही है। तो हम लोगों को जो मैंने पिगी बैंक का एक एग्जांपल दिया था, तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका भी है। तो ये सब कुछ मिला के एक इंपॉर्टेंस रहता है लाइफ इंश्योरेंस का। नेक्स्ट दिन हम लोग उसके थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे। ऑलमोस्ट 2 डेज में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई थिंक तुम लोग को ये सब कुछ समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी डिटेल्स में और कुछ पॉइंट को लेके बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।